بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھیوں کو مدثر ملک کا محبتوں بھرا سلام۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں عیش و آرام سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہمشکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئی۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا نے وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھیں کہ جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و الفت، صبر و شکر وغیرہ وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بیٹھا دیا گیا، اور اسی وقت حضرت آدم بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بنا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے، نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل مت کھائیے گا۔ اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے اور ہم جنت میں ہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم سے نافرمانی کرا کے اس کو بھی جنت سے نکلوا دوں گا۔ اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا اور پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے کہا، فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تو مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا۔ نمبر 2، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور نمبر 3، ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ مور نے کہا کہ آدم کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائیں۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا، پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے، پھر بتلاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا، تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا، فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اسی لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدردی سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ جنت ہی میں رہو گے، کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے۔ مکر کا رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کینہ کپٹ رکھنا، یعنی جب موقع ملے گا تو بدلہ لوں گا، اور دوسروں کو اجاڑنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور اللہ کا حکم نہ ماننا،
हठ धर्मी और ज़िद करना, ये सब गुनाह सबसे पहले शैतान ही ने किए। हज़रत हव्वा शैतान के मकर फ़रेब में आ गई और दरख्त से 3 फल तोड़े। एक आपने खा लिया और 2 हज़रत आदम के पास लाईं और कहा कि एक फल मैंने खा लिया और ये 2 आप खा लें। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसको खाने से मना फरमाया है। कहा यह फ़रिश्ता खुदा की कसम खाता है और हमारे गम में रोता है। इससे ज़्यादा गमख्वार कौन होगा? अगर आप ना खाएंगे तो इस फ़रिश्ते के कहने के मुवाफ़िक आप जन्नत में नहीं रहेंगे और मैं जन्नत में आपके बग़ैर कैसे रहूँगी। इन्हीं बातों में हज़रत आदम भी भूल गए और फल को मुंह में डाला ही था, हलक से नीचे भी ना उतरा था कि अल्लाह ताला का गज़ब आ गया। जन्नत के कपड़े उतार कर दोनों को नंगा कर दिया। बदन छुपाने के लिए उस दरख्त के पास पत्ते लेने जाते, वो दरख्त ऊंचा हो जाता और जन्नत की तमाम चीज़ों की तरफ से कहा जाता कि हमसे दूर हो जाओ, तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करके मुजरिम हो गए हो। आप खौफ व शर्म व हया की वजह से बेचैन हो गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ आदम, तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। आपने ये दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, हम माफ़ी चाहते हैं। अगर आप हमको माफ़ ना करेंगे और रहम ना फरमाएंगे तो टोटा पाने वालों में हो जाएंगे। हुक्म हुआ, ऐ आदम, हमने तुमको मना किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और ये भी बतला दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके धोखे में ना आना। अब इस नाफरमानी की सज़ा ये है कि तुम दोनों जन्नत से निकलो और दुनिया में जाओ। और हज़रत जिब्राईल को हुक्म दिया कि आदम और हव्वा को सांप और मोर और शैतान नाफरमान को जन्नत से निकाल कर दुनिया में डाल दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सबको जन्नत से निकाला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीब, जो हिंदुस्तान में एक जजीरा था, उसमें डाला और हज़रत हव्वा को खुरासान में और मोर को सीस्तान में और सांप को कोहे इस्फहान में और शैतान को एक बड़े खौफनाक पहाड़ में डाला। सांप बहुत खूबसूरत था। शैतान जालिम की मदद करने और लालच करने से बदसूरत हो गया और पेट के बल चलता और खाक छानता फिरता है। मोर की सूरत ही बदल गई, वो अपने पाँव को देखकर रोता है। शैतान दुश्मन इंसान को ये सज़ा मिली कि लानत का तौक गले में पड़ा और जो लोग उसकी ताबेदारी करेंगे आखिरत में सबको दोज़ख की ही आग में झोंक दिया जाएगा। मुसलमानों, इस किस्से से सबक हासिल करो। अल्लाह व उसके रसूल की नाफरमानियों से बचो और शैतान के मकर फ़रेब में मत आओ। किसी अल्लाह वाले की सोबत अख्तियार करो। देखो, गौर कर लो कि नाफरमानी कितनी बुरी चीज़ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का कबूल होना, हज़रत आदम को जन्नत से निकालने का, दुनिया में आने का, अल्लाह ताला के नाराज़ होने का इस कदर सदमा था कि शर्मिंदगी की वजह से सर मुबारक झुकाए रखते थे और बहुत ही बेकरारी में रोते थे। हर वक्त ये कोशिश थी कि किसी तरह मेरा कसूर माफ़ हो जाए। लिखा है कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा 300 बरस ऐसा रोए कि आंसुओं से नहरें बह गईं। तमाम चरिंद परिंद पानी पीकर कहते थे कि सुभान अल्लाह, क्या उम्दा और मीठा पानी है। आप उस वक्त बहुत शर्मिंदा होते और कहते, हाय अफसोस, मेरा कसूर पर जानवर भी हंसते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता, अय आदम, ये जानवर सच कहते हैं। जो बंदा हमारी नाफरमानी करके हमारे खौफ से डरता है और शर्मिंदा होकर रोता है, हमारे नज़दीक उसके आंसू शहद से भी ज़्यादा मीठे होते हैं। मोहसिन आज़म हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 किस्म की आँखें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला दोज़ख में नहीं डालेगा। नंबर 1, वो आँखें जो अल्लाह ताला के खौफ और शर्मिंदगी से रोई होंगी। नंबर 2, वो आँखें जो गुनाह की चीज़ को ना देखें। नंबर 3, वो आँखें जो फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नींद छोड़कर तहज्जुद की नमाज में जागी होंगी। लिखा है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी इतना रोईं कि उनके आंसुओं से मेहंदी और सुरमा पैदा हुआ और जो कतरे समुद्र में गिरे उनसे मोती बने। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की जुदाई को 300 बरस गुजर गए। वे एक दूसरे की जुदाई में तड़पते थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल आपके पास आए और फरमाया कि आप हज अदा करें। आप अल्लाह ताला का यह हुक्म सुनते ही हज को चल दिए।
जब अराफात के मैदान में पहुंच गए तो आराम लेने के लिए एक जगह बैठ गए। क्या देखते हैं कि जद्दे की तरफ से हज़रत हव्वा आ रही हैं। आप मोहब्बत के जोश में खड़े हो गए और दौड़कर उनको लिपट गए। दोनों रोते रोते बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। ये हाल देखकर फरिश्ते भी रो पड़े। उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत का दरिया जोश में आया और अल्लाह ताला की कुदरत से हज़रत आदम की नज़र आसमान की तरफ गई तो क्या देखते हैं कि अर्श आज़म पर कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। फिर आपने ये दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तेरे नाम के साथ जो ये नाम लिखा हुआ है उसके तोफ़ैल में हमारा कसूर माफ़ कर और हमको बख्श दे। हज़रत जिब्राईल उसी वक्त अल्लाह ताला का सलाम लाए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम, अगर तुम जन्नत में ही मोहम्मद के तोफ़ैल से दुआ मांगते तो हम तुमको दुनिया में ना भेजते और तुम्हारा कसूर माफ़ कर देते। अब हम तुमसे खुश हैं, तुम्हारा कसूर माफ़ किया, तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हारा मर्तबा पहले से ज़्यादा किया। यानी फिर जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो उनके रब ने ज़्यादा मकबूल बना लिया और तौबा कबूल की। उनको हमेशा अपनी ताबेदारी में रखा और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम हमारी बारगाह में एक अजीमुश्शान ज़रिया और तुफ़ैल लाए हैं, सब उनकी ताज़ीम करो। ये हुक्म सुनते ही हज़ारा फरिश्तों ने आपकी ताज़ीम की और आपकी बदन मुबारक को गर्दो गुबार साफ़ करने लगे। सुबहान अल्लाह, अपने मालिक व खालिक अपने खुदा के सामने शर्मिंदा होना, अपने कसूरों की माफ़ी मांगना एक अजीब बूटी है और नहायत मुबारक इलाज और अमल है। और किस कदर अज़ीमुश्शान वसीला और नाम मुबारक है हमारे आकाए नामदार महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। महबूब है क्या सल्ले अला नाम मोहम्मद, आँखों की ज़िया दिल का जिला नाम मोहम्मद। इस नाम की लज्जत दिल उश्शाक से पूछो, जान आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद। कुरान में जन्नत में अर्श आज़म पर किस शान से अल्लाह ने लिखा है नाम मोहम्मद। अज़ीज़ दोस्तों, कल की वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात शरीफ का बयान करूँगा। आप तमाम दोस्तों से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया।